Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Kautilya Law Academy Patna. I am Simple and we are back with another interactive session, and for today's video we have our director Kameshwar sir, and along with him we have Nimisha ma'am from NLU Patiala, and we have Shreyaskar sir from NLU Nagpur. So first of all, I would like to congratulate both of you. So many congratulations. Thank you. Okay, so sir, my first question to you is how you came to know about this institute? Firstly, thank you, Simple, for kind introduction. So, after I was done with my BLLB honors in 2022, I expressed my intention of writing judiciary examination and particularly Bihar judiciary to my father. And he actually told me about Kameshwar sir. Kameshwar sir was an old acquaintance of my father. He gave me the contact number. I contacted him, I met him, and I truly remember the first meeting. In the first meeting itself, he did some preliminary assessment of my preparation. He asked me some questions on the basis of, I think, evidence law, as to check whether I had to start from scratch or I had some prior basic knowledge. And he suggested me to appear in the mock test series that used to happen every weekend in the institute. So I religiously followed his advice, and I'm really fortunate to have him as a mentor, and that I followed the preliminary guidance whatever he gave, and after that he also helped me in mains and interview stage 2. Okay, so clearly you were very clear कि आपको LLB के बाद judiciary pursue करना है. Right. Okay, ma'am, what about you? How you came to know about this institute? Okay, so like Shreyaskar said, he was always very certain that he wanted to pursue judicial services. Okay. Even I was very sure that I want to apply my passion for law for public service. Okay. So when I was expressing my intention, one of my Mausis who got selected in 30th Bihar Judicial Services, Piyush Payal, she was the one who actually recommended me to serve, and I went to serve for the very first time on her recommendation. वहाँ सर ने मेरा बेसिक नॉलेज टेस्ट लिया. फिर उसके बाद मुझे जीके जीएस में ज़रूरत थी तो मुझे कोचिंग का सपोर्ट मिला, और इनिशियली मैंने एज अ टेस्ट सीरीज स्टूडेंट की तरह से स्टार्ट किया था. बट थ्रूआउट द जर्नी दिस इंस्टीट्यूशन वाज विद मी टू गाइड मी एट एवरी स्टेज, whether to make my legal foundation more nuanced, and so that is how I came to know about SAM. Okay. So sir, coming to you, आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सिंपल. तो इन दोनों के बारे में थोड़ा हम बैकग्राउंड बता देते हैं. श्रेयस्कर के फादर जस्ट लाइक हमारे बड़े भाई, फ्रेंडली तौर पर हम लोग हैं और काफ़ी ओल्ड हम लोग का रिलेशन रहा है. तो उनसे बातचीत हुई, वो हमको कॉल की कि भाई बेटा ऐसे ऐसे करने वाला है, तो ठीक है आप लेकर आइए. फिर इनसे बातचीत हुई, फिर इनको गाइडेंस स्टार्ट की. तो हम कुछ इनको टेस्ट किए थे, लेकिन इनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है. होता है ना कि 2-3 तरह के कैंडिडेट आते हैं. एक ब्लैंक होते हैं जिनको काफ़ी हेल्प करना पड़ता है, एक का फाउंडेशन अच्छा रहता है. इनकी फाउंडेशन काफ़ी अच्छी थी, वो ज़्यादा एफर्ट लगाने का इनमें ज़रूरत नहीं पड़ा. हाँ, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट भी हैं और तो भी उसके बाद आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में भी हम लोग देख चुके हैं या पिछले एग्ज़ाम में भी देख चुके हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा. लेकिन इन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो किया और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया. तो इनका क्रेडिट जाता है कि इन्होंने स्ट्रिक्टली कोचिंग में जो दिए गए प्रोग्राम थे उनको फॉलो किया और सक्सेसफुल. थैंक यू सर. आप अब निमिषा मैम के बारे में ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो दोनों लोग हमसे किसी न किसी तरह से फैमिली मेंबर के तरह ही कनेक्टेड हैं. तो इनकी भी एक रिलेशन में आएगी. पीयूष पायल जो 30th बैच में क्वालिफाई किए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, रैंक भी होल्ड किया था उसने, अच्छा 20th रैंक में थी. तो वो तुम्हारी क्या लगेगी? मौसी लगेगी. मौसी लगेगी. तो उनके रिकमेंडेशन से आई. तो वो भी मेरी फैमिली मेंबर तो है ही, और ये भी मेरी फैमिली मेंबर ही है. और उसके बाद ये LLM करने लगी और फिर बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई. तब बोले कि देखो भाई एक टाइम एक ही काम करना है. लेकिन उसके बाद इसने बराबर ही टच में रही कोचिंग के, और जो स्ट्रेटजी गाइडेंस हम लोग करते थे उसको ये फॉलो करती थी. प्रीलिम्स का हुआ या मेंस का हुआ, और साथ में LLM भी इसने किया, वो NLU
कहाँ का था? बैंगलोर, NLU बैंगलोर से इसने LLM भी किया और पैरेलल इसका प्रिपरेशन चल रहा था, जो कि बहुत टफ टाइम था इसके लिए, लेकिन ये स्मार्ट एनफ इसने मैनेज किया और एक अच्छा रैंक किया इस एग्जाम में। सो मैम, अगर हम लोग बात करें अपार्ट फ्रॉम स्टडीज का, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन जर्नी है जुडिशरी का, वो अबाउट टू 2 years खींच लेता है, काफी लंबा टाइम है, एंड एक जो इंसान है वो हर टाइम पढ़ते नहीं रह सकता है। सो इफ आई आस्क यू कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपने क्या किया था ताकि ये जर्नी जो है एक मोनोटोनस ना हो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? So like you said कि जर्नी बहुत लंबी होती है, जी। so honestly it was very daunting upon me कि इतना लंबा जर्नी में कंप्लीट करूं। तो मैं हर वीक में कम से कम 2 घंटे खुद के लिए निकालती थी, जिसमें आई यूज टू डू सेल्फ केयर, जो किसी भी तरह से होते हैं, एनी वे यू वांट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो परस्यूड माय हॉबी फॉर मधुबनी पेंटिंग। तो मैं बीच बीच में बनाती थी, एंड इट यूज्ड टू seeing the colors of painting, it used to refresh me a lot. So that is something which I used to follow on a very daily and regular basis. Okay. So sir, what about you? I personally feel that मैंने क्या किया कि एक फिक्स्ड आवर रखा पढ़ने का, ताकि your preparation does not become your identity कि पूरे दिन भर पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने about 6 to 8 hours रखता था पूरे दिन का पढ़ने का। And apart from that, I used to, my hobby is actually cooking, तो मैं कुछ डिशेस बनाता था, वही मेरा थेरेपी था। And also I also used to go for walking, and सर ने भी सजेस्ट किया था मॉक इंटरव्यू के टाइम पे कि यू ट्राई टू मेडिटेट। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उतना तो मैं कर नहीं पाया, फिर भी ट्राई ऑब्वियसली करता था कि कर सकता। ओके, सो सर, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि 32nd का रिजल्ट आउट हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। सो आप इन दोनों को क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे फ्यूचर के लिए? तो बेस्ट विशेस ये है कि चैलेंजेस तो इस एग्जाम में भी रहे हैं जी, तो काफी इन्होंने हार्ड वर्क किया और आगे तो अब जॉब में जाने के बाद भी एक स्ट्रगल है और एक चैलेंज है, उसको भी जिस तरीके से इन लोगों ने एग्जाम को किया, कूल माइंड पेशेंटली जैसा हैंडल किया इन लोगों ने, तो जॉब में भी इनको इसी टेम्परामेंट बनाना है, पेशेंस के साथ जॉब करना है और अच्छा जज बनना है, परफॉर्म करना है इन लोगों को। okay. Thank you sir. So that was all for this video. Thank you everyone for joining. Thank you everyone. And हम लोग इनके साथ सिंगल वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम लोग इनके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, and you can watch it on our channel. Thank you so much. Thank you. Thank you.